जीवन की गति अवरुद्ध है, गतिरुद्ध है शहर सारा। बेबस है हर व्यक्ति, खामोश है शहर सारा। वर्तमान की इन अवसादपूर्ण परिस्थितियों में का सामना कुछ लोग विजेता की तरह सामने आए हैं। ऐसे ही विजेताओं की प्रेरणादायक कहानियों को विनर्स एंड क्रिएटर्स ग्रुप प्रत्येक शनिवार आपके सामने लेकर आ रहा है फेसबुक के माध्यम से। मैं दीपा जैन, फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल्स, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी संचालिका श्रीमती प्रशांति गौड़ा जी हैं, जो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु की प्रिंसिपल है। साथ ही आप एक टीचर ट्रेनर्स व पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं। चुनौतियों के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। चुनौतियां ही होती हैं जो व्यक्ति के अंदर के गुणों को बाहर लेकर आती है। जो व्यक्ति इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करता है, वही वास्तविक विजेता है। ऐसे ही एक विजेता को विनर्स एंड क्रिएटर्स आज आपके सामने लेकर आ रहा है, जो पिछले 18 वर्षों से सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि विशिष्ट बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी समर्पित है। आपने विभिन्न शिक्षा संबंधित विषयों पर लगभग 350 से ज्यादा सेमिनार, वेबिनार संचालित किए हैं। आपका व्यक्तित्व बेहद ही सरल है, पर दृढ़ निश्चय असाधारण है। तो मैं स्वागत करती हूँ आज की हमारी कोरोना विजेता हरप्रीत कौर जी का, जिनका जीवन के प्रति एक ही मंत्र है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। अब मैं आगे के संचालन के लिए Thank you so much for the introduction, Ms. Deepaji. This year has certainly not been normal one. With rising COVID-19 cases, it's hard to imagine the positive start. But still, once you replace negative thoughts with a positive one, you will start having the positive results. Dear all, let's be the Corona warriors rather than Corona carriers. Moving further, today I would like to introduce our Honorable Founder, CEO of Winners Creators, that is Mr. Yogi Yoginder ji. Basically, he is a trainer and started competition classes and also coaching classes, which was a huge success. As he is ambitious and wanted to do something more for the welfare of humanity, he started Winners Creators Organization. That's really great. So moving ahead, we have with us Ms. Gulnaz Parveen as our program head. Ms. Gulnaz is founder principal of Harsh International School. She's a global talk speaker, educationist, and also skill development trainer. We welcome you, ma'am, for the show. Whenever we are on a talk show, experts' opinion matters a lot, isn't it? So here we have 3 experts on our show today. Let's welcome all of them. Our first expert, that is Ms. Sonal Jaj. Ms. Sonal Jaj is an educator, teacher's trainer at Universal Healer. She is a published writer and an editor of the book The Third Eye. That's great, ma'am. And also, Sonal ji has healed more than 40 COVID patients. That's really great. We welcome you for the show, Sonal ji. Moving further, we have Manisha ji as our one more expert on our show today. Miss Manisha is a soft skill trainer and Confederation of Indian Industry. We welcome you, Manisha ji, for the show. And our one more expert on our show, on our talk show, is Ms. Sapna Kumar. Ms. Sapna Kumar is a principal at Cambridge Earth School. She is a passionate educationist who has been contributing in various roles in the field of education for decades. We welcome you, ma'am, for the show. So, and also I would like to welcome, I'll take this opportunity to welcome all of our viewers on the Facebook. I welcome you all. इतना आसान नहीं होता जीवन का किरदार निभाना।
इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। हरप्रीत जी, ऐसी ही चुनौती जब कोरोना के रूप में आपके सामने आई तो आपने क्या किया और आपके परिवार को आपने कैसे संभाला? धन्यवाद दीपा जी। मैं हरप्रीत कौर, एक टीचर, एक स्पेशल एजुकेटर, एक ट्रेनर, कोरोना फाइटर के इस मंच पर योगी योगेंद्र जी और उनके सहयोगियों का धन्यवाद करती हूँ। पिछले साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। ये सफर आसान नहीं था, आसान नहीं है और आसान नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके थे, ठीक हो चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस को मैं जानती थी, प्रिकॉशंस सब ले रही थी। डर था, चिंता थी, घबराहट थी, लेकिन ये विश्वास था कि मैं सही कर रही हूँ और सब सही है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये विश्वास पिछले साल तक सही था, लेकिन इस साल जब वाकई में मेरा इससे सामना हुआ तो मैं घबरा गई, परेशान हो गई और समझ भी नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इस कश्मकश में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ सीखा। मेरे परिवार में मेरी बेटी, मेरे भैया भाभी और मेरी 70 साल की मदर है। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर का सभी काम मुझे और भैया को करना पड़ता है बाहर का, तो हम अक्सर प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर जाते थे और प्रिकॉशन घर में भी फॉलो करते थे। पर कभी ना कभी एक सवाल दिमाग में आता था कि मैं तो प्रिकॉशन ले रही हूँ, बाहर क्या? लेकिन फिर भी लगता था कि सब ठीक है, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जब मुझे बुखार हुआ, खांसी हुई, सिर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब मेरा टेस्ट और स्मेल चली गई तब डर शुरू हुआ, ये क्या हो रहा है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं। पर वही है ना कि हम कभी कुछ चीजें मानना ही नहीं चाहते। मैंने भी इसको इग्नोर किया, सिर्फ ये सोचा बुखार है, ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं अपने आप को आइसोलेट कर चुकी थी, अपने फ्रेंड्स की मदद से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन चुपचाप घर में किसी को बताए बिना। मैंने इस बात की खबर किसी को होने नहीं दी कि मेरे को तकलीफ है, मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी बात छुपाए नहीं छुपती, ऐसे ही हुआ। जब मेरी बेटी को, मेरे भैया भाभी को सेम सिम्टम दिखने लगे, घबराहट बढ़ गई, डर बढ़ गया। क्या करूं, ये क्या हो गया मेरी वजह से? मगर समझ में नहीं आ रहा था। तब अपनी गलती का रियलाइज हो रहा था कि मैंने ये क्या किया, कि काश मैंने बता दिया होता, काश मैंने टेस्ट करा लिया होता। लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी। लगता था कि बाहर जाके रिस्क कैसे लूं, टेस्ट कैसे कराऊं, और सबसे बड़ी बात कि ये बात मैं घर में कैसे बताऊं कि मुझे कोरोना है। मेरी मम्मी 70 साल की है, पिछले 10 सालों से न्यूरो की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, दवाइयां खा रही हैं और मानसिक तनाव उनके लिए खतरनाक है। मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं रह सकती थी। अब समझ में आया कि कुछ तो करना होगा। बहुत ही सोचा, बहुत ही समझा। सबसे पहले घर में सभी का टेस्ट कराया। टेस्ट कराने में हम 6 में से 4 मेंबर जो थे वो पॉजिटिव थे। मेरी मम्मी नेगेटिव थी। अब चिंता और बढ़ गई कि हम सब पॉजिटिव लोगों में मम्मी को कैसे सेफ रखेंगे, कैसे समझाएंगे उन्हें कि हम बीमार हैं। नहीं समझ आ रहा था। फिर ये समझ में आया कि बताना पड़ेगा। उनसे यही कहा कि हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी दूरी बनानी है। हम आइसोलेशन में थे, अलग अलग कमरों में थे, लेकिन हम एक दूसरे से कभी भी दिल से दूर नहीं थे। हम अपनी मम्मी का और आपस में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते थे, वीडियो कॉल करते थे, मैसेजेस भेजते थे और हमेशा मुस्कुरा के दिखाते थे। इसी तरीके से दिन चल रहे थे। सही बताऊं तो कट रहे थे। हर एक दिन भारी था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन एक चीज समझ में आई कि 15 दिनों के दौरान ये रियलाइज कर लिया था कि ये माइंड गेम है। जहां मैंने अपना दिमाग बदला वहां सब कुछ बदल सकता है। इसी सोच ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपना दिमाग डाइवर्ट किया, क्योंकि मैं एक स्पेशल एजुकेटर, एक टीचर हूँ। अपने आप को अपने काम में व्यस्त किया।
क्योंकि मेरे बच्चों को भी मेरी जरूरत थी। उनके घर में भी कोई बीमार था, वो भी परेशान थे, और सबसे बड़ी बात वे छोटे थे। उनको जब हिम्मत देनी होती थी तो स्माइल करके उनको बोलती थी कि बेटा सब ठीक है, मैं भी बीमार हूँ पर दवाई खा रही हूँ। उनको सिखाना था कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन सबक जरूर सिखा के जाएंगी। उन्हें उनके आगे के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं उनको जगाना था कि जिंदगी में ये सब होता है। उनके प्यार से, उनकी हिम्मत से उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना था। उनको मोटिवेट करते करते कहीं ना कहीं खुद पे विश्वास आता था कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। तो ये विश्वास जो था जब मैं दिखाती थी तो मेरे बच्चे खुश होते थे। उन्हें देख के कहते हैं ना कि बच्चों में तो रब बसता है, हिम्मत अपने आप आ जाती थी। वही हम सब अपने घर में जो माहौल था हमेशा खुशनुमा बना के रखते थे। इस दौरान जो हमने सबसे जरूरी चीज की वो ये कि अपने घर में नेगेटिव थॉट और नेगेटिव जो विचार वाले लोग हैं उनको बैन कर दिया। जब भी करनी है अच्छी बातें करनी है, भले ही वो बेवकूफी वाली हो, सिर्फ हंसो और खुश रहो। किसी भी तरीके से दिमाग में ये ना आए कि ये क्यों, सिर्फ ये पूछो वाह क्या बात है। यही चलता जा रहा था। रोज की बातों में हंसी मजाक में एक एक दिन कट रहा था। इसी दौरान ये समझ में आया कि हम लोग कितने कीमती हैं, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं, एक दूसरे से दूर जरूर है मगर दिल के कितने करीब है। आज सोशल मीडिया का थैंक यू करने का मन किया कि देखो दूर बैठे सब लोग एक छोटी सी विंडो में मेरे पास है, जब मन करता है एक कॉल लगाओ और बात कर लो। हमेशा मैं अपने उन्हीं दोस्तों से बात करना पसंद करती थी जो कि मुझे हिम्मत देते थे, जो मुझे एहसास दिलाते थे कि मैं उनके लिए कीमती हूँ। अपने बच्चों से बात करती थी क्योंकि वो चाहते थे कि मैम ठीक हो। बच्चे कहते हैं ना दिल के सच्चे सच बोलते हैं। उन्होंने एहसास दिलाया कि जिम्मेदारी मेरे कंधों पे ज्यादा है। घर है, परिवार है, पर मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। उनके लिए मुझे ठीक होना है, अपने परिवार के लिए ठीक होना है, अपनी बेटी के लिए ठीक होना है। यही सोच के हिम्मत आती थी और रोज बिखर के फिर सिमट में जाती थी। इसी तरीके से मेरे दिन आराम से तो नहीं कहूंगी पर हाँ बीत रहे थे, अब कट नहीं रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है आज का दिन कट गया, शुक्र है, शांति से। इस दौरान एक जो सबसे अच्छी चीज थी कि मेरी मम्मी बहुत धार्मिक है। उनको पाठ कहते हैं ना करना बहुत पसंद है, या तो कह दूं कि उनकी दिनचर्या यहीं से शुरू यहीं पे खत्म है। मेरे घर में पूरा दिन गुरबाणी चलती थी, तो वो होता था कि नहीं गलत सोच यहाँ तो आ ही नहीं सकती, और हमने ये किया भी। गलत सोच को कभी अपने पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि यही देखा है कि कहते हैं ना कि शांत पानी में अगर आप पत्थर मारो तो वो भी हिल जाता है। तो हम अपने साथ कैसे होने देंगे, तो हमने उन सोचों को अपने से दूर ही रखा। मैं रिकवर कर रही थी, मेरी मम्मी देख के खुश हो रही थी। कहते हैं ना उनकी खुशी उनके चेहरे पे झलकती थी, तो वो हिम्मत मिल जाती थी कि सब ठीक है। इसी तरीके से सब चल रहा था। और सबसे बढ़िया तब हुआ जब मेरी बेटी और मेरी भाभी ने रिकवर किया। कहते हैं ना अब खुशी तिगुनी हो चुकी थी, लेकिन कहीं एक कमी थी। मेरे भैया भी ठीक नहीं थे, उनका ऑक्सीजन लेवल अभी भी कम था। चिंता थी, फिर लगता था कि नहीं ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएंगे, और फिर मस्ती भी तो करनी है। कहीं ना कहीं एक थॉट कहते हैं ना पूरी सोच बदल देता है। इसी के साथ हम आगे चल रहे थे। इस आइसोलेशन के दौरान हमने बहुत कुछ किया, ऐसे लगा कि जैसे जिंदगी रुक गई है। हम कहते हैं ना एक मील के पत्थर पे बैठ के अपना पीछा और अपना आगे देख रहे थे। बचपन की शैतानियां, बेवकूफियां, सब कुछ एक दूसरे से बांट रहे थे। कहीं ना कहीं हम सब बच्चे बन गए थे। एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस, एक दूसरे के इंटरेस्ट ले रहे थे और दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात फ्यूचर गोल जो हमने डिसाइड किए उन पे वर्कआउट करना शुरू कर चुके थे। अक्सर हमें समय नहीं मिलता जिंदगी की भागदौड़ में, बहुत कुछ होता है हाथ में लेकिन समेटने के लिए टाइम नहीं होता। मुझे ऐसे लगा कि मुझे वो टाइम मिल गया है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात मेरा बचपन फिर से लौट आया है। अब तो कुछ भी करने की इजाजत है।
बड़े होके क्या फायदा है, सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां है। ये सोच के हम लोग बहुत खुश होते थे। और इतना कुछ शेयर करने के बाद जो मैंने कमाया इस 20 दिन के बाद, अपने दोस्त जो मेरे से दूर हो चुके थे उनको, अपने बच्चे, उनका विश्वास, और सबसे जरूरी बात मेरी जड़ें, मेरा परिवार। जो कहते हैं ना, हम जब फल बन जाते हैं तो जड़ से दूर हो जाते हैं, पर ये समझ में आया कि हिस्सा तो हम अपनी जड़ों का ही रहते हैं। बहुत कुछ सीखा। और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब हमने अपनी, कहते हैं ना, गोल सेट किए, तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं कॉलेज जाऊंगी। मैंने कहा ओके। मैंने भी डिसाइड किया कि मैं सेलिब्रिटी बनूंगी। तो वो कहती मम्मा कैसे? मैंने कहा बेटा कैसे हटाओ, और ये देखो कि कब क्या होगा पता नहीं, लेकिन टारगेट है कि ये करना है। कहते हैं ना, चैलेंज को चैलेंज दिया और मैं आज आपके सामने हूँ, इसी सोच के साथ कि आप सिर्फ सोचो और सिर्फ बोलो, वो हो जाता है। आप कर सकते हो, सिर्फ ये विश्वास आपको दिखाना है और कहते हैं ना, और ये मानना है कि मैं कर सकता हूँ। और इसी विश्वास के साथ मैं सिर्फ एक यही बात कहूंगी, सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि ये कहकर दिल ने मेरे हौसले हमेशा बढ़ाए हैं। परेशानियों की धूप है तो आगे खुशियों के साए हैं। मैंने ये खुशियां, कहते हैं ना, परेशानियों में से निकल के पाई है, और शायद ये हिम्मत मुझे आगे भी इन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। सच ही है हरप्रीत जी, जब मंजिलें जिद्दी हो तो रास्ते भी जिद्दी हो, हौसले भी जिद्दी हो, तो जीत और भी लाजवाब होती है। क्योंकि कहा भी है, ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता है। हरप्रीत जी, हमारे कई दर्शक जो इस समय हमारे साथ प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पैंडेमिक के दौर में वो एक ऐसी क्या चीज है जिसको आप कहेंगी कि उससे एकदम दूर रहना चाहिए। मैम, ये जिंदगी का असूल है कि हमें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। हर चीज के लिए, कहते हैं ना, हमें लड़ना पड़ता है। पैंडेमिक में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा संसार उससे जूझ रहा है। तो सबसे जरूरी जो हमने किया वो था नेगेटिव थॉट को अपने से कोसों दूर रखना। हमने कभी भी ये माना ही नहीं कि ये नहीं हो सकता। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन, यू विल। तो यही एक जज्बा जो था वो कभी हमें, कहते हैं ना, हार मानने ही नहीं देता। और एक अपने पे विश्वास, अपनों का साथ आपको, कहते हैं ना, हिम्मत देता है और आगे ही बढ़ाता जाता है। तो हमेशा मैं सकारात्मक रही, पॉजिटिव रही, और यही वजह रही कि मैं अपनी फैमिली को भी कभी भी नेगेटिव नहीं होने देती। क्योंकि मुझे पता है हर परेशानी, कहते हैं ना, थोड़ी होती है, हम उसको बड़ा होने ही नहीं देते। जब हम उसको बड़ा बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी लगती है। तो जो छोटा है उसे छोटा रखो, यही मेरा मंत्रा रहा इस दौरान और यही मैंने किया। थैंक यू मैम। थैंक यू। यदि खुद से नहीं हारेंगे तो अवश्य ही जीतेंगे। रियली मैम, वेरी इंस्पायरिंग वर्ड। ओवर टू प्रशांत। Thank you, Haripreet ji, for sharing the initial experience when you came to know that you are positive. When we change the quality of your thinking, you will change the quality of your life. No matter what you are going through, there is a light at the end of the tunnel. And it may seem hard to get it, but you can do it, and just find the positive sides of the thing. Be positive, think positive, and spread positivity. Haripreet ji, thank you so much for your message that you have given right now. So Haripreet ji, during this moment, ma'am has banned, Haripreet ji ma'am has banned all negative people and all negative thoughts. Such a good message, and you are a true winner. So moving ahead, I would like to pass on the same question to one of the experts who is present on our show, that is Sonal ji. Sonal ji, what is that one thing you realized in this pandemic that was somewhere
appreciated. So what do you think about it? Thank you, Prasanti. One thing I would like to appreciate the willpower of Harpreet ma'am. And as Deepa ma'am has said, जिद जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी हथियार होती है। तो हरप्रीत जी के एक्सपीरियंस को देखकर और सुनकर मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे वो वाकई में कोरोना से जूझ रही है। इनफैक्ट शी वाज लर्निंग द चैप्टर्स ऑफ लाइफ व्हिच वर समवेयर नेग्लेक्टेड। कुछ ऐसे पन्ने थे जिंदगी के जो कभी पढ़े नहीं थे, पर वो हम पलटते गए थे। तो आज वो पन्ने वापस आए, उन्होंने उनको परखा, उनको देखा और उनको सीखा। तो लुकिंग एट विल पावर, मैं एक दो चीज कहना चाहूंगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरे मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और जिस तरह से उन्होंने ये सेल किया, ये पूरा जर्नी, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, बस अपनी मौज में रहना और चुपचाप से बहना। तो वो बहते गए लहरों की तरह। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कोरोना से अफेक्टेड हूँ या मैं कभी भी उससे जूझ रही हूँ। और ये दो चीजों को रख के और दो चीजें मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे हीलिंग करने के बाद, बहुत सारे लोगों की हीलिंग करने के बाद मैंने ये देखा है, समवेयर इन लाइफ वी हैव नेग्लेक्टेड द स्मॉल थिंग्स। कहते हैं देने वाला तो हमें बहुत कुछ देना चाहिए, हम गिनती उन्हीं की करते हैं जो नहीं मिल रहा है। जो दिया है वो तो बहुत है, गिनती हम उनकी नहीं करते हैं। तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द स्मॉल थिंग्स, क्योंकि वो जब छोटी चीजें कब बड़ी बन जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बहुत बड़े आदमी की, he was very healthy, इतना पैसा था उसके पास और वो हमेशा पूजा पाठ करता रहता था। पर उसके मन में कहीं ना कहीं था कि पूजा पाठ करते करते उसके मन में एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि आज बड़ी खुशी आएगी, आज छोटी खुशी आएगी। तो एक दो दिन तक वो लगातार पूजा पाठ करता रहा, बड़े बड़े भोजन बनाता रहा वो भगवान को प्लीज करने के लिए, पर अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं इंतजार करता रहता था। पर जब उसके वो विल पावर को देख के, जब उसने देखा कि पहली खुशी आई, छोटी खुशी आई, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जब 10वीं बार 11वें दिन जब उसने देखा कि मैंने 11 दिन का जोत जलाया है, खुशी नहीं आई मेरे दरवाजे पे, पर उसे एक आवाज आती है और उसके मन में ये कहती है कि मैं आई थी, मैं तेरे दरवाजे पे दस्तक कई बार देके गई, पर तूने दरवाजा नहीं खोला। तो मुझे लगा शायद जब तूने छोटी खुशी के लिए दरवाजा नहीं खोला तो मेरे लिए क्या खोलेगा। तो इस तरह से जब बड़ी खुशी आती है हम उसे भी नजरअंदाज कर देते हैं और उसे जाने देते हैं। तो इस पैंडेमिक में ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि अपनी खुशियों को आंचल में समेटो, उनको पकड़ के रखो, उनको संजो के रखो, क्योंकि ये पैंडेमिक में ये खुशियां हैं जो आज हम अपने फैमिली के साथ बैठ के फैमिली फन ट्रिप्स बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग अ फैमिली पिकनिक, वी आर मेकिंग फन ट्रिप्स विद द फैमिली, जो बहुत बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं खो गई थी। तो इसको आप ये मत देखो कि ये पैंडेमिक है या हम कोविड से, हम ईश्वर ने हमें एक ऐसा बम्बार्डमेंट दिया है, एक वेकअप कॉल है हमारे लिए, तो वो चीजों को लर्न करने के लिए जो हम कभी लर्न नहीं कर पाए थे। तो हरप्रीत मैम, आई सैल्यूट यू for your willpower and your wonderful learning to share with all the COVID patients and all the students on the line to keep up your willpower strong, stay away from negativity and stay safe, stay happy. Thank you so much. थैंक यू सोनल मैम, थैंक यू वेरी मच। आपकी सलाह रियली वेरी अप्रिशिएबल है कि छोटी छोटी खुशियों का स्वागत करेंगे तो उनमें जो खुशी मिलेगी वो बड़ी खुशी मिले ना मिले जिंदगी फिर भी कंप्लीट होगी। रियली हरप्रीत जी, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि जब आप कोरोना से लड़ रहे थे तब आपने अपनी मानसिक स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे रखा, सुदृढ़ कैसे बनाए रखा? धन्यवाद दीपा मैम, प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि हर परेशानी में सबसे जरूरी होता है कि दिमाग का आपके काबू में रहना। कहते हैं ना कि अकल के घोड़े ज्यादा नहीं दौड़ाने चाहिए, तो उस दौरान मैंने अपने घोड़े साइड में ही रखे थे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब वो दौड़ते हैं तो कई बार काबू नहीं आते। तो मैंने उसको साइड पे रखा, लेकिन अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोल के रखे। जिसने मुझे जो कहा ऑलवेज वेलकम, और जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने लिया। और इस बार जो मैं कहूँ कि मैंने बहुत अच्छी विंडो शॉपिंग की है, बहुत अच्छे अच्छे जेम्स लिए हैं, तो मैं इस दौरान वो सब करती रही। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दोस्तों, रिश्तेदारों या कहते हैं ना कि मेरे जो मुझे बहुत पसंद करते हैं उनकी कमी है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। सबको मेरा यही मोटिव होता था कि सिर्फ एक स्माइल दो, कहीं ना कहीं उनको भी एक कहते हैं ना मुस्कुराहट की वजह दो, क्योंकि जिंदगी में कहते हैं ना करने के या परेशान होने के बहाने हजारों है।
तो कम से कम एक खुशी की वजह तो हम ढूंढ ही सकते हैं। तो इस दौरान यही मैंने किया कि दिमाग बंद रखा, दिल खुला। यही वजह थी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अच्छी चीजें आई और मैंने उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे इस समय में बहुत कुछ सीखने, परखने, जानने के लिए ये सुनहरी मौका दिया। थैंक यू दीपा मैम। Thank you so much, Haripreet ji, for your information that you have given for that question. Few things in the world are more powerful than a positive push. That is, smile. A world of optimism and hope, a gentle world, and a kind, good look, and a good natured smile can work wonders and accomplish miracle. So smile is a good thing that we have to keep at this moment and spread happiness to everyone. Happiness, whether it is small, big, or a huge, start accepting it. Thank you, Sonal ji, for your beautiful message for our viewers. Yes, even I agree with your words that, 1.5 years back, we were very busy that we were not giving time to our families. But I think this is a right time to spend a lot of time with our family. Well said, well said. So, and also I appreciate Haripreet ji that she has utilized this time in spending, doing the window shopping. That's great. Okay, moving ahead, I would like to pass my next question to our one more expert, that is Manisha ji. Manisha ji, at this situation, how should one maintain their mental balance, at this time, when we come to know that we are positive, or a family person is, one of the family person is positive or something like that, our mental balance will get disturbed. So how one should maintain that? What is your opinion regarding that, Manisha ji? Thank you, Prashanti ma'am, and a very good evening to all of you. As an expert, what can I recommend for the COVID-19? Yes, situations are really very critical, which is not in our hands. But still, we have to be very positive. So, as an expert, what can I recommend? Go for the spiritual knowledge. Yes, spirituality, it really works a lot. Trust me. Personally, what I feel. And apart from the spiritual knowledge, go for the meditation, go for the yoga. And yes, very, very, very important for the, especially for the COVID-19, do breathing exercise. It really works a lot. And meditation, if I will talk about the meditation, what I can suggest. First one is Osho meditation. You can follow, go for the Sahaj Yoga, and you can go for the Raj Yoga, etc. Any kind of meditation, but just do it. Thank you, ma'am. थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। रियली सही है, आध्यात्म जीवन को बहुत एक अलग लाइन पे लेके जाता है। जीवन जीने का वास्तविक तरीका आध्यात्म ही है और उसका मार्ग योग ही है। सही है ना मैम? जिंदगी उदास मत होना, संघर्ष है, चलती रहेगी, पर कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। हरप्रीत मैम, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जब आपके परिवार के सभी सदस्य पॉजिटिव थे, आपकी मदर जिनकी एज 70 इयर्स है वो बीमार भी है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की ताकत बन के खड़े रहे, एक दूसरे के साथ आप लोगों ने पूरी तरीके से एक दूसरे का संबल बनाए रखा। लेकिन वो लोग क्या करें जो इस पर्टिकुलर टाइम पे अकेले रह के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही दीपा मैम, ये तो पैंडेमिक है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ 1, 2 या 5 साल की हो सकती है। लेकिन जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, शहर से दूर, देश से दूर, तो उस समय वो भी स्ट्रोमा से गुजरते हैं। वो समय बहुत ही कठिन होता है, अकेलापन इंसान को खा जाता है। कहते हैं ना कि समझ पर भी ताले पड़ जाते हैं, सिर्फ निराशा ही निराशा दिखती है। तो उस समय सबसे जरूरी ये है कि हमें सबसे पहले अपने को ढूंढना है, हम क्या है, हम क्या चाहते हैं, इस पे हमें कहते हैं खोज करनी है। इस खोज के बाद हमें उन लोगों को ढूंढना है
जिनके लिए हम जरूरी है, जिनके साथ हम दिल की बात कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सो ना सही, कोई एक तो ऐसा होगा जो हमारी सुनेगा। तो वो एक ही इंसान आपको जिंदगी में मशाल लेके आगे चलता दिखेगा और रोशनी दिखाएगा। वो कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या कोई अनजान भी हो सकता है। सिर्फ आपको वो एक रोशनी ढूंढनी है, ये वजह ढूंढनी है कि आप यहाँ पे इस धरती पे क्यों हैं। क्योंकि आप जिस भी वजह से है वो वजह बहुत बड़ी है। आपको बहुत कुछ करना है। अपनी सोच बदलिए, जानिए कि आप क्या हैं। आप सिर्फ दूसरों से दूर हो सकते हैं, लेकिन ये संसार आपसे, आपकी पहुंच से दूर नहीं है। यही जरूरी है कि आप अगर अकेले हैं तो हमेशा सबसे बात करें, लेकिन उससे जरूरी है पहले अपनी खोज करें। अपनी खोज में आपकी खोज किस पर जाके खत्म होती है, ऐसे लोगों को ढूंढिए। तभी आप कहते हैं ना, जिंदगी की दौड़ में आगे निकल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते सभी आप बना सकते हैं। थैंक यू दीपा मैम। Thank you, Haripreet ji. Thank you so much for well said. So, our thoughts and feelings determines the action and determines the results you get. Haripreet ji has said that we are very precious. We need to take care of ourselves first, then we get an ability to balance our families. Such a good word, such a good words. And also inner peace is very important. That's what ma'am is telling. At this moment, I would like to, tell one quote regarding this COVID. East or west, home is the best. Take some rest, don't call the guest. Enjoy your home first, don't have an outgoing zest. This is the life-saving test, so be in your nest. This is the entire world request. Well said. I don't know who has said this, but I've got this quote from someone. So thank you so much, Haripreet ji. So moving ahead, I would like to pass on the same question to one of our passionist and expert who is present on our show, that is Sapna Kumar. Sapna Kumar ji, what message you would like to give for the people who are alone and suffering with COVID? Because as Haripreet ji said, all of them were positive. Only our mother was left out. If the students are going outside, parents will be separated. So at this situation and moment, what is your message that you would like to give for all our viewers and for us? Okay, thank you for having me here. First of all, I would like to appreciate the efforts and the experience as well as the courage which has been shown by Harpreet throughout her COVID journey, and she came out as a winner, and that is how we are just talking today on Winners Creator. So really, it's an awe-inspiring journey. Coming to the question of Prashanti, I believe as far as COVID is concerned, living alone during social isolation can be taxing and wreak havoc to the mental well-being of a person, which further can deteriorate the level of strength one requires to fight back. Hence, if you're living by yourself, or if you're living all alone or away from your family members and struggling with COVID, it's important to take care of your emotional health. So first of all, you need to prioritize healthy relationships. That is what everybody of the experts, even Harpreet, has spoken about it. So you must have to maintain healthy relationships, keeping one thing in mind, that if you're talking about your worries and anxieties to other people, then you would add into a new perspective, and that perspective may help you to release your exertion or the kind of pressure you are finding yourself in because of the COVID situation. Moreover, healthy diet, exercising regularly can help to combat worries or anxieties. Here, I would like to mention about exercising. Exercising, it doesn't mean that the person who is suffering from COVID should go for heavy workout. So the person can go for mild exercise or moderate exercises in which the person can prefer doing meditation, yoga, or breathing exercises. The most effective way is to dive in new hobby or skill, because you have to keep yourself busy. If you're getting yourself engaged with your skill or the hobby you are finding yourself interested in, for sure you are not able to get
inside the confinement of negative thoughts, you are capable to penetrate that. So all in all, everything is important, whether that is medication, meditation, healthy diet, healthy relationships. But apart than that, what is more important, your sheer determination, the positive attitude, and the just to fight back. Thank you. थैंक यू सपना मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके वर्ड्स रियली कोरोना की लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया उसको समझो जीवन जीना आ गया। हरप्रीत जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगी? थैंक यू दीपा मैम। पहले तो इस कोरोना फाइटिंग के बाद मैं एक चीज कहूंगी कि अंत भला तो सब भला। अंत हुआ, सब अच्छा हुआ, और मुझे ऐसे 3 मंत्र अपनी लाइफ के लिए मिल चुके हैं जिसके मुझे लगता है कि जो मुझे आगे लेके जाएंगे। पहला मंत्र मेरा ये है कि मैं प्रीशियस हूँ, मैं कीमती हूँ, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आप यंग हैं, आपके सपने हैं, आपके माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के सपनों को पूरा कीजिए और उनको पूरा होते हुए देखिए। तो आपको तो ठीक रहना ही है, खुश रहना ही है। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ के रहे। छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी खुशियां देती है, उसको एंजॉय कीजिए। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए नेगेटिव विचारों से और नेगेटिव लोगों से। तीसरा, जो सबसे जरूरी, उस ईश्वर का हर समय धन्यवाद कीजिए कि अगर वो आपको किसी सिचुएशन में डाल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको परख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आप में ताकत है, आप हरा सकते हो उस चुनौती को। तो इस चुनौती के साथ लड़ना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है। और कहते हैं ना, जिंदगी है तो कहते हैं कि जिंदगी है तो खुशियां हैं, खुशियां हैं तो गम भी है। तो सब कुछ साथ चलेगा, मगर हमने हमेशा खुश रहना है और आगे निकलना है। थैंक यू दीपा मैम। We are precious. We are precious and problems are common. Together we can face it and win it. So thank you so much, Haripreet ji. I would like to now at the end of the show, we are having Sonal ji over here. I would like to ask, what is a mantra from Sonal ji, from the side of Sonal ji? वंडरफुल क्वेश्चन प्रशांति मैम। मंत्र ऐसे होते हैं कि हमारे वो एक कैप्सूल्स होते हैं, जिस तरह से हमें मल्टीविटामिन चाहिए हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सो उसी तरह हम भी एक पैंडेमिक में अभी बहुत सारे मंत्र बना रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट ऑन 4 मंत्र, जिस तरह से हरप्रीत जी की स्टोरी थी। वन ऑफ देम इज द वे शी सेड नेगेटिविटी से फुल स्टॉप। So beautiful things happen to those who remain away from negativity, whether it is negative people, negative surroundings or negative atmosphere. And number 2 is relationships की, जैसे उन्होंने बात की कि आज हम एक साथ बैठ के अपने रिश्तों के मतलब तोल रहे हैं, कौन कब कहाँ कैसे करेगा, किसके रिश्तों की ज्यादा अहमियत होती है। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रिश्तों की खुशबू उस चंदन जैसी होती है, जरा सा घिसने पर महक जाते हैं दिल के रिश्ते। तो आज दिल के रिश्ते महके हुए पैंडेमिक में सब एक साथ हुए, सबने एक दूसरे का सहारा दिया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, हरप्रीत जी की जिस तरह से विल पावर थी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बैटल्स आर वन फर्स्ट इन द माइंड, नॉट इन द बैटलफील्ड। पर अगर तुम्हारे मन में वो शक्ति है, तुम्हारे मन में वो डिफीट करने का जज्बा है, तो कोरोना तो क्या, आने वाले लाइफ के जितने भी छोटे छोटे पैंडेमिक है वो भी हम डिफीट कर लेंगे। और जिस तरह से मैं यूनिवर्सल हीलिंग करती हूँ, यूनिवर्सल हीलिंग में ये होता है, यू हैव टू बिल्ड पॉजिटिव थॉट्स।
You have to stay away from the negative thoughts and positivity अपने अंदर लाना है, क्योंकि हम खुद ही अपने अंदर एक मैजिक पावर है, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हम किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं और लड़ने की हमें क्षमता होती है। और तीसरी चीज जो मैं अप्रिशिएट करूंगी हरप्रीत जी की, दैट इज 3 gems ऑफ लाइफ, सब्र, शुक्र और दुआ। उन्होंने सब्र रखा, उन्होंने शुक्र किया ईश्वर का, और दुआएं जो उसको सबके अपनों की मिली है। ये तीनों चीजें जिंदगी में आगे के लड़ने के लिए आज वो हमारे सामने है, लड़ाई लड़कर मुस्कुराकर सबके लिए प्रेरणा बनकर बैठी है। तो सब्र, शुक्र और दुआ, इनको अपनाओ लाइफ में। दे आर द वंडरफुल जेम्स इन लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू वेरी मच। रियली लड़ाई जो होती है वो दिमाग में जीती जाती है। 75% battles won into the mind only, 25% only into the ground. मनीषा जी, यही क्वेश्चन कि जिंदगी को, इस लड़ाई को जीने के लिए आपका मंत्र क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। Okay. Thank you, ma'am. At last, I would like to say that the problems and the life, they both are two sides of a coin, which will go with us till our death. जैसे जीवन जीने की कला आ गई, इसे प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कला आ गई, उसे जीवन जीने की कला आ गई, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। Thank you so much. So no worry about the problems. Thank you so much, Manisha ji. Well said. You know, problems and life are the both sides of the same coin. You know, we should keep on moving. That's a life. Thank you, Manisha ji, for giving such a mantra to all our audience and also the viewers and all of us. So moving ahead, I would like to, ask Sapna Kumar ji. Ma'am, according to you, what is your mantra? Because already we have got such a beautiful mantras from all our experts. So even I would like to ask you, what is your mantra from your side for all of us? Shanti, I think self-help is a divine responsibility. First of all, in this pandemic, we must try to keep ourselves safe. If we are safe, the society is safe. So first of all, means try to keep yourself safe and reach out to the people, those who are in your help, those who are in requirement of your help, because reaching out is what, can build the connection, because this is a fight which we can't win all alone. We need the collaboration, coordination and cooperation of each other. So at last, I would like to say that one should be compassionate. So that means, we could take a lesson from the present scenario and would try to do something to nature, to the creatures with whom we share this earth. So I would like to end this talk with one quote, that love and compassion are necessities, not luxuries. Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity can't survive. So you should be compassionate and you should try to love your aspects as well as aspects of others, being human. Okay, thank you. Thank you, ma'am. इस पूरे शो के अंदर जो मुझे चीज समझ में आती है हरप्रीत जी की स्टोरी सुन के, एक्सपर्ट्स के व्यूज सुन के, कि जो कुछ भी कारण है इसमें बहुत सारी है, सभी को परेशानी है, तकलीफें हैं, लेकिन जो खोया है वो एक्चुअली कहीं खोई है, वो खुशी खोई है। तो कुछ शब्दों में उसको मैं बांधती हूँ कि चलो हंसने की हम कोई वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो हम जगह ढूंढते हैं, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमान में यारों, चलो जमीन पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं, छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों में हम दिलों की गिरह ढूंढते हैं, बहुत वक्त गुजरा है भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रातों की हम सुबह ढूंढते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि मैम गुलनाज मैम की तरफ आगे फॉरवर्ड करती हूँ कि मैम अंत में आप हमें बताइए कि एक्सपर्ट की एक्चुअली इस लड़ाई को लड़ने का मंत्र क्या होना चाहिए। गुलनाज जी। Thank you, Deepa ma'am. Thank you, Deepa ma'am. And first of all, I really want to thank Harpreet Kaur ma'am. Very well said कि आपने अपनी जर्नी बताई कि कैसे आप पूरे सिचुएशन से कैसे हैंडल किए। मैं उसे लेके मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, जिस तरह आप मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि जीना जब हर हाल में है
तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है? क्यों? क्योंकि आपने इतने घर पे 4 पॉजिटिव, आपने जैसे बताया घर में 4 पॉजिटिव लोग थे, उसके बावजूद आपकी मदर एज ऑफ 70 एज थी, फिर भी आपने हौसला रखा, हिम्मत वहां नहीं खोई कि मेरे घर पे ऑलरेडी 4 पॉजिटिव है और मेरी माँ है जिसकी एज 7 है, तब भी आपने वहां हिम्मत दिखाई, अपना डिटर्मिनेशन वहां पर कायम रखा, आपने अपने जुनून के साथ सब पूरी फैमिली को लेके, हैंड्स ऑफ यू हरप्रीत मैम। एंड जिस तरह आपने 3 मंत्र जैसे बताया है कि आप कितनी भी कमी हो, है ना, आपकी अंदर की चीजों को लाना होगा, कीमती चीज जो है ना वो आपको बाहर लाना है, अपनी वैल्यू को समझना है। आपने जैसे बताया कि खुद की वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू को समझो कि हम अपने परिवार को किस तरह लेकर चले। अगर कठिनाइयां तो आती है, लेकिन कठिनाइयां में अपने परिवार को जोड़ के रखने में वो सबसे बड़ी हिम्मत है, जबकि आप कोरोना पॉजिटिव थे आपके परिवार में। और दूसरी चीज ने आपने बताई कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, वंडरफुल, क्योंकि नेगेटिव पर्सन हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही देते हैं। अभी जिस सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मोस्टली पीपल दे गिव नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी माइंड में आती है, पर आपने कहा कि पॉजिटिव के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और फिर आपने कहा कि कोई भी सिचुएशन है उसे प्रैक्टिकली लो, उसे आप दिमाग में उसको रख के आप उस सिचुएशन को, और आप उसको प्रॉब्लम में मत डालो, आप उसको और प्रॉब्लम में मत डालो, है ना। तो इस तरह ये है। और दूसरी बात है कि आपने जैसे थर्ड कहा कि गॉड को जो है हमेशा याद रखो, है ना, गॉड को हमेशा याद रखना है, आपको हर एक एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है कि अभी आप जो सिचुएशन से बाहर निकले हो, एक तरफ से गॉड का भी आपके ऊपर हाथ है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास था गॉड के ऊपर कि मुझे गॉड इस सिचुएशन से बाहर जरूर निकालेगा। और मैं एक कोट्स के साथ मैं एंड करना चाहूंगी, ठीक है। द कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। क्योंकि आपने कम बैक जो किया है ना, इज रियली अप्रिशिएट मैम, इज रियली अप्रिशिएट, क्योंकि कम बैक जो है ना बहुत आसानी से नहीं आती है, बहुत मुश्किल से आती है, और आप इस कठिनाई में बहुत मुश्किल सहे हो। मुझे पता है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कैसे आप घर के सिचुएशन, बाहर के सिचुएशन, आपके फैमिली को लेके चलना, आपकी 70 एज की मॉम को लेके चलना बहुत डिफिकल्ट है, उसके बाद भी आप कम बैक आए हो, वापस आए हो, एंड थैंक यू। और मैं इस प्रोग्राम के जो फाउंडर है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये आपका मंच बनाया जहां पर कोरोना फाइटर्स आके अपने व्यू रख रहे हैं, एक्सपर्ट अपने एक एक्सपर्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, और यहाँ पर आके इतने अच्छे अच्छे बातें और मंत्र बता रहे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी हमारे व्यूअर्स है यहाँ, जो भी हमें देख रहे हैं लाइव में, उसे फॉलो करिए। ऐसे नहीं है कि आप आज देखो और कल उसे माइंड से निकाल दो, उसको आपको फॉलो करना है, अपने लाइफ में उसे इंक्लूड करें, ताकि हमारी हर एक एक मंत्र को आप याद रखें। और हम हर सैटरडे 8 to 9 हम लाइव आते हैं। आप कोशिश करें, अगर जो भी आप कोरोना पॉजिटिव रहे हो, आप इसे देख के आप अपने थॉट्स को चेंज करिए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी यहाँ कोरोना फाइटर्स आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं। Thank you very much. Thank you Deepa ma'am, and thank you everybody. Thank you. Thank you, Gulnaz ma'am. Thank you so much, for being our program head. I really appreciate that. Moving ahead, I would like to thank to all my experts who are present on the show right now. I really like to thank everyone for giving such a beautiful message, motivational message and mantra for all of us. And also, I really would like to thank, the hot seat woman on our show, that is Haripreet ji. Thanks a lot. Thanks a lot. I think you are the real winner. Winners, creators, ka real winner hai aap. Thank you so much, Haripreet ji, for being on our show. And also, I would like to thank, our program coordinator, that is Anita ma'am, who is not there on our show as of now, but she's on live with us on FB.
I would really like to thank to her because she's always been with us, during the time of practice session. I really would like to say thanks to Anita ji for doing the coordination for this program. And also I would like to thank all our viewers on the FB. So I would like to conclude this show by telling a short quote, stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused, and stay strong. We can win. Thank you so much, everyone. We can.